Good morning and Jai Hind, dear students. Welcome to class of Geography. Dear students, the chapter which is going on is Human Resources, and we have already discussed many topics of the chapter. Today, we will discuss the other topics of the chapter. So, it is my humble request to all my students, please open your book. Chapter is Human Resources, and please be attentive for next 30 minutes. So, let's start chapter Human Resources. Okay, so dear students, chapter Human Resources, we have discussed many topics. Today, we will discuss about change of population. ये जो population में change आता है, what is that? That we will discuss today. So, change of population means the change in the number of people living in a territory during a specific time, say a decade. Change of population क्या है? It is the change in the number of people living in any region during a specific time. For example, for 10 years. And it is written say a decade. So for example, 10 years. So what is the change in the number of people who are living in one territory and during a specific time? So now population change can be expressed either in absolute numbers or in percentage. देखो पॉपुलेशन चेंज को दोनों तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, एब्सोल्यूट नंबर्स में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है एज वेल एज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, इसको परसेंटेज में भी दिखाया जा सकता है. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि पॉपुलेशन चेंज डिपेंड किस पे करता है. सो पॉपुलेशन चेंज डिपेंड्स अपॉन, mainly there are three components on which population change depends, and they are birth rate, death rate and migration. ठीक है, हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. सो पॉपुलेशन चेंज डिपेंड्स अपॉन बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन. इन्हीं तीनों पे पॉपुलेशन चेंज डिपेंड करता है. ठीक है ना? ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज बर्थ रेट एंड व्हाट इज डेथ रेट. सो द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 persons in a year is known as birth rate. I am repeating it one more time. The number of live births per 1000 persons in a year is known as birth rate, and the number of deaths per 1000 persons in a year is known as death rate. One more time I am repeating, the number of deaths per 1000 persons in a year is known as death rate. So now you are familiar with birth rate or death rate. So the number of live births or deaths per 1000 persons in a year is known as birth rate or death rate respectively. And the difference between the birth rate and death rate in a year gives the annual growth rate of population. Means what is the difference between birth rate and death rate? That gives us the annual growth rate of population in any country, even in India also. Clear? So the difference between birth rate and death rate in a year, it gives the annual growth rate of population. And you know, if the number of births exceeds the number of deaths within a year, the population will increase. आपको ये समझना है कि अगर नंबर ऑफ बर्थ जो है वो नंबर ऑफ डेथ से ज्यादा है किसी साल में, यानी जन्म लेने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो गई मरने वाले लोगों की संख्या की अपेक्षा, तो द पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? दैट विल इंक्रीज, क्योंकि जन्म ज्यादा लोगों ने लिया और मरे कम लोग, तो पॉपुलेशन क्या होगी? पॉपुलेशन बढ़ जाएगी.
That's why if the number of births exceeds the number of deaths within a year, the population will increase. और इसी को अपोजिट कर लो, if the number of deaths exceeds births within a year, then the population will decrease. यानी अगर डेथ्स मरने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है जन्म लेने वाले लोगों की संख्या की कंपेयर में, तो क्या होगा, पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो अगर बर्थ रेट या बर्थ ज्यादा है डेथ से, तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, और अगर डेथ ज्यादा है बर्थ से, तो पॉपुलेशन विल डिक्रीज. आफ्टर दैट, so trends in population change. What are the trends in population change? So the total population of world at the time of agricultural revolution, I am talking about 10,000 years ago. देखो जब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का टाइम था, उसमें पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन थी, that was only 5 million. I'm talking about whole world. So at the time of agricultural revolution, the population, the total population of the world was only 5 million. Then it rose to about 500 million at the time of industrial revolution, around 1750. What happened at the time of industrial revolution? The world's population rose to about 500 million. So the advancement in the field of science and technology, क्या हुआ, साइंस में बहुत सारे एडवांसमेंट हुए, इंप्रूवमेंट हुए, टेक्नोलॉजी में बहुत सारे एडवांस चीजें आ गई, तो इसने इंसानों की लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव कर दिया. ठीक है ना, हेल्थ फैसिलिटीज को इंप्रूव कर दिया. सो द टोटल पॉपुलेशन रीच्ड अबाउट 1000 मिलियन इन 1820. तो पूरे दुनिया की पॉपुलेशन 1820 में कितनी हो गई, that reached about 1000 million, world's population I'm talking about. After that, the annual growth rate was about 1% in 1930. देखो 1930 में जो एनुअल ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का, that was 1%. In 1960 it increased to about 2%. 1960 में विद इन 30 इयर्स क्या हो गया, ये ग्रोथ रेट जो है वो 2% हो गया. And with assured food supply and improvement in medical facilities, देखो प्रॉपर फूड सप्लाई की वजह से, मेडिकल फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट की वजह से, इट इज एस्टिमेटेड दैट द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन में रीच अबाउट 8000 मिलियन बाय 2025. देखो बिकॉज फूड सप्लाई अश्योर हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आ गए, तो ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है दैट में रीच अबाउट 8000 मिलियन. जस्ट इमेजिन population explosion. After that, the developing countries are trying to check the rapid population growth and maintain it to 1.5%. ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, प्रॉब्लम पॉपुलेशन की वही है. सो दे चेक द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो 1.5% के आसपास उनकी ग्रोथ रहे. और you know that about 95% of the total increase of the world population will be in developing countries during the next 25 years. Just imagine dear students, पूरी दुनिया के पॉपुलेशन का 95% जो पॉपुलेशन है वो डेवलपिंग कंट्रीज की वजह से होगा नेक्स्ट 25 इयर्स में. तो दीज आर द डेवलपिंग कंट्रीज हु हैव टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ. ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनको अपना पॉपुलेशन ग्रोथ को चेक करना पड़ेगा. अदरवाइज इन द नेक्स्ट 25 इयर्स about 95% of the total increase of the world population will be because of developing countries. Okay, then माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. हमने डेथ रेट के बारे में बात किया, बर्थ रेट के बारे में बात किया. माइग्रेशन, व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, देन इट इज माइग्रेशन इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज, इन सर्च ऑफ बेटर जॉब. तो माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर और विद इन द सेम कंट्री ऑल्सो इन्फ्लुएंस द चेंज ऑफ पॉपुलेशन. हम लोगों ने देखा कि बर्थ रेट की वजह से और डेथ रेट की वजह से पॉपुलेशन में चेंज आता है.
माइग्रेशन की वजह से भी, चाहे वो माइग्रेशन शुड बी फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री और फ्रॉम विद इन द सेम कंट्री, इट इन्फ्लुएंस द चेंज ऑफ पॉपुलेशन। लोग क्यों जाते हैं, माइग्रेट क्यों होते हैं? सो पीपल यूजुअली माइग्रेट फ्रॉम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलप्ड एरियाज और डेवलप्ड कंट्रीज। लोग अंडर डेवलप्ड एरियाज से डेवलप्ड एरियाज की तरफ माइग्रेट करते हैं बिकॉज ऑफ बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की वजह से पीपल मूव फ्रॉम अंडर डेवलप्ड एरियाज टू डेवलप्ड एरियाज। And the adverse conditions operating in rural areas such as unemployment, poverty, poor education and health facilities force people to migrate cities. लोग गांव से शहरों की तरफ क्यों आते हैं? तो there are many conditions like there is unemployment in rural areas of India, there is poverty, the quality of education is not good, health facilities are not better, so people migrate from rural areas to cities to get these facilities in better condition. Clear? So they migrate and it influences the total population. अब हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन की। सो द पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। ये जो पॉपुलेशन कंपोजिशन की हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को रेफर करता है। ध्यान से सुनिएगा, लिसन इट केयरफुली। एज, सेक्स, लिटरेसी एंड ऑक्यूपेशंस आर सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन कंपोजिशन. If we are going to talk about the important components of population composition, so they are age, sex, literacy and occupations. These are the components of the population composition. Clear? Population composition की बात कर रहा हूं, then I am talking about the structure of the population. Okay? And then age, sex, literacy and occupations are components of the population composition. तो सबसे पहले बात करें एज कंपोजिशन की, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखो, एज कंपोजिशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल इन ईच एज ग्रुप। एज कंपोजिशन क्या है कि हर एज ग्रुप में कितने लोग हैं, द नंबर ऑफ पीपल इन ईच एज ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 4 years, 0 से 4 years तक के बीच में कितने लोग हैं, 5 to 9 years तक के बीच में कितने लोग हैं, and so on and like that. Generally, the population of a country is broadly divided into 3 categories. अगर broadly किसी country की population को divide करना हो तो 3 main categories में divide करते हैं, that you have to know and that you have to understand. कौन कौन सी category है? First one is children. Children is a group which is 0 to 14 years. तो 0 से 14 इयर्स तक के जितने भी लोग हैं वो किस एज ग्रुप, वो किस ग्रुप में आएंगे, वो चिल्ड्रन में आएंगे। देन एडल्ट्स, अगर हम एडल्ट्स की बात कर रहे हैं तो फ्रॉम 15 इयर्स टू 59 इयर्स, तो 15 इयर्स से 59 इयर्स तक के जितने भी लोग हैं दे विल कम अंडर एडल्ट्स। एंड थर्ड ग्रुप इज एज्ड, एज्ड पीपल, तो 60 इयर्स एंड अबव, जो लोग 60 इयर्स या उससे ज्यादा के लोग हैं वो एज्ड में आएंगे। So we have 3 groups. Broadly, we have 3 groups: children 0 to 14 years, adults 15 to 59 years, and aged 60 years and above. Clear? Okay. After that, तो एक नई चीज आई, एज सेक्स पिरामिड। जो पिरामिड अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स, सो एज सेक्स पिरामिड ऑल्सो नोन एज द पॉपुलेशन पिरामिड। ये आपको याद रखना है क्योंकि अब हम लोग पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एज सेक्स पिरामिड, विच इज ऑल्सो नोन एज द पॉपुलेशन पिरामिड, हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ एनी कंट्री। आप किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन पिरामिड देखकर उस कंट्री के पॉपुलेशन कंपोजिशन को समझ सकते हैं। एंड इट इज फॉर एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। It tells us about the distribution of females and males in different age groups.
ये हमको क्या बताता है? ये हमको बताता है कि मेल्स और फीमेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हर एज ग्रुप में कैसा है। जो हम लोगों ने अभी एज ग्रुप डिस्कस किया है ना, तो इट टेल्स अस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो नाउ लिसन इट केयरफुली। If the death rate as well as the birth rate are high, अगर डेथ रेट या बर्थ रेट अगर हाई है तो पॉपुलेशन पिरामिड कैसा होगा? द पॉपुलेशन पिरामिड इज ब्रॉड एट द बेस एंड टेपरिंग टुवर्ड्स द टॉप। मैं अभी इसको आपको इमेज भी दिखाऊंगा। अगर डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई है किसी कंट्री में, तो जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो पॉपुलेशन पिरामिड जो बेस पे बहुत ब्रॉड होगा, और ये जैसे से टॉप जाएंगे वैसे वैसे ये टेपरिंग करता चला जाएगा। क्लियर? डेथ रेट और बर्थ रेट अगर हाई है तो पॉपुलेशन पिरामिड जो बेस है पॉपुलेशन पिरामिड का वो क्या होगा? वो ब्रॉड होगा, और टॉप जैसे से जाएंगे तो टॉप की तरफ वो टैप करता चला जाएगा, टैपरिंग करता चला जाएगा। और इस टाइप का जो पॉपुलेशन पिरामिड है ना, इट रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जहां पे ब्रॉड बेस है और टैपरिंग टुवर्ड्स टॉप है। ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का पॉपुलेशन पिरामिड होगा। The pyramid shows that although the birth rates are high, still many children die in their infancy, and thus very few people reach the old age. क्या बताता है ये पिरामिड? यस, बर्थ रेट्स तो हाई है, लेकिन उसके बाद भी, यानी बर्थ रेट ज्यादा है वहां पर, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे जो है वो अपने जन्म लेने के बाद कुछ समय में मर जाते हैं। चिल्ड्रन डाई इन देयर इन्फेंसी, वो अपने ओल्ड एज तक नहीं पहुंच पाते। ओके, चलो मैं आपको इमेज दिखाता हूं, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखो, आई एम शोइंग यू द इमेज ऑफ केनिया। वेट, मैं इसको थोड़ा स्मॉल कर दूं। आर यू एबल टू सी? देखो, मैंने कहा था ना, दिस इज द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ केनिया, और आप देखें कि जैसे आप बेस में हैं तो बेस कितना ब्रॉड है ना, और जैसे आप टॉप की तरफ जा रहे हो ये टैपरिंग करता चला जा रहा है। यस, तो बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स दोनों हाई हैं इस पर। क्लियर? लुक, मैंने क्या कहा था कि उसका बेस जो है वो बहुत ब्रॉड होगा, और जैसे से आप टॉप पे जाओगे वो टैपरिंग करता चला जाएगा। तो जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक केनिया, उनका जो पॉपुलेशन पिरामिड होगा वो ऐसा होगा। ठीक है? और ये वाला पोर्शन जो है ये मेल्स को दिखा रहा है, ये फीमेल्स को दिखा रहा है। Clear? And these are the age group, 0 से 4 years, 5 to 9 years, 10 to 14 years. तो आप देख रहे हैं ना, जैसे से हाई एजेस में जा रहे हैं लोगों की संख्या कम होती चली जा रही है, बिकॉज बच्चे जो है इन्फेंसी में ही डाई कर जाते हैं, वो ओल्ड एज तक नहीं पहुंच पाते, बहुत कम पहुंच पाते। ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज, इफ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर लो, अगर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों लो है तो क्या होगा? देन द पॉपुलेशन पिरामिड इज नैरो एट द बेस। तो पॉपुलेशन पिरामिड क्या होगा? बेस पे नैरो हो जाएगा। और ऐसा जो पॉपुलेशन पिरामिड है, इट रिप्रेजेंट्स पॉपुलेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, रिच कंट्रीज, जहां पर बेस नैरो होता है, ठीक है, और बेस से टॉप तक जो है वो लगभग एक जैसी सिचुएशन में रहता है। तो दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। द पिरामिड शोज दैट द डिक्रीज इन डेथ रेट्स अलाउ मोर पीपल टू रीच ओल्ड एज। ये पॉपुलेशन पिरामिड क्या शो करता है? दैट डिक्रीज इन डेथ रेट्स कम है, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो है वो ओल्ड एज तक जा पाते हैं, जैसा कि केनिया में नहीं था। चलो, आई एम शोइंग यू द इमेज, तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। लुक दिस, देख रहे हो ना, यहां पर बेस जो है वो नैरो है। केनिया में ये बहुत ज्यादा था, लेकिन यहां पे बेस नैरो है। लगभग इसी तरह से लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 90 to 94 ईयर्स, 85 to 89 ईयर्स में भी बहुत सारे लोग हैं।
तो दिस पॉपुलेशन पिरामिड रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। वो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे मैं फिलहाल ये जो शेयर कर रहा हूँ दिस इज ऑफ जापान, है ना, जापान इज ए डेवलप्ड कंट्रीज, मैं उसका पॉपुलेशन पिरामिड आपको दिखा रहा हूँ। तो जापान जैसे देश जो डेवलप्ड है ये उनका पॉपुलेशन पिरामिड होगा, जहां पे डेथ रेट एंड बर्थ रेट बोथ आर लो, एंड इट शोज दैट कि चूंकि डेथ रेट बहुत कम है इसलिए ज्यादातर लोग इनके जो है ओल्ड एज तक जाते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज due to decrease in birth and death rates, the base of the pyramid is less broad as compared to developed countries। ठीक है, देखो बर्थ रेट और डेथ रेट्स में डिक्रीज की वजह से, यानी वो डिक्रीज हो रहा है, ये इसका जो पिरामिड जो है वो कम ब्रॉड होता है अगर डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करें तो, एंड दिस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करें तो, एंड दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। और इस तरह का पॉपुलेशन पिरामिड जहां पे डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों डिक्रीज कर रहा है, लो, मैंने एक में बताया कि एक में हाई होता है फॉर एग्जांपल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, एक में लो होता है फॉर एग्जांपल डेवलप्ड कंट्रीज, और एक में बर्थ रेट एंड डेथ रेट में वो डिक्रीज होता है। दैट इज द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। आई एम शोइंग यू ऑफ इंडिया, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्रीज, तो मैं आपको इंडिया का दिखा रहा हूं। लुक दिस पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया, है ना, लुक यहां आप देख रहे हो ना, इसका जो बेस है वो इट इज वेरी नैरो, ठीक है, इसका बेस नैरो है, इट इज अकॉर्डिंग टू 2015, और 2050 में इंडिया की कंडीशन इस तरह की हो जाएगी। क्लियर? तो आप देख रहे हो कि चूंकि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों में डिक्रीज आ रहा है तो वो इस तरह का पॉपुलेशन पिरामिड बनेगा जो कि बेस इसका नैरो हो जाएगा। क्लियर? ओके, so there are two groups of people who are treated as dependent। अब आपको जानना यह है कि दो ग्रुप के लोग ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं कि वो डिपेंडेंट हैं। कौन कौन सा ग्रुप? बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज एंड दोज हु आर 60 ईयर्स एंड अबव। तो जो 14 ईयर्स से नीचे के लोग हैं, बच्चे हैं, या जो 16 ईयर या उससे ज्यादा के लोग हैं, उनको हम बोलते हैं डिपेंडेंट। क्यों? बिकॉज दे कैन नॉट अर्न। और जो पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 59 ईयर्स, और वो लोग जो 15 से 59 ईयर्स के बीच में आते हैं, दे आर टर्म्ड एज वर्किंग पॉपुलेशन। ये आपको याद रखना है। दोज बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज एंड दोज हु आर 60 ईयर्स एंड अबव, दे आर टर्म्ड एज डिपेंडेंट्स इन कंट्रीज, and the people in the age group of 15 to 59 years, they are termed as working population of country, और they are economically active। वो क्या है? वो economically active हैं, वो अर्निंग करते हैं। तो डिपेंडेंट कौन कौन से हुए? बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज एंड 60 ईयर्स एंड अबव। वर्किंग पॉपुलेशन क्या हुई किसी कंट्री की? तो फ्रॉम 15 टू 59 ईयर्स। क्लियर? ओके, now sex ratio. Now we will talk about sex ratio. What is sex ratio? So the ratio between males and females is known as sex ratio. मेल्स और फीमेल्स का जो रेशियो होगा ना, उसी को सेक्स रेशियो कहते हैं। और ये इसको और इजी में समझ लो, इट इज रिप्रेजेंटेड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी हर 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज सेक्स रेशियो। ठीक है? और ऐसा देखा गया है दैट मेल बर्ड्स एक्सीड फीमेल बर्ड्स इन ऑलमोस्ट ऑल सोसाइटीज ड्यू टू बायोलॉजिकल रीजंस। मेल जो बर्ड्स हैं वो लगभग सभी सोसाइटीज में फीमेल बर्ड्स से ज्यादा है।
और इसीलिए देयर इज नॉट बैलेंस इन मेल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। तो हम लोगों ने क्या बात किया, व्हाट इज सेक्स रेशियो? सो द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, दैट इज द सेक्स रेशियो। तो अगर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो सेक्स रेशियो इज ऑफन फेवरेबल टू फीमेल्स। अगर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वहां फीमेल्स के लिए सेक्स रेशियो जो है अनफेवरेबल है, यानी वहां पे नंबर ऑफ मेल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ फीमेल्स कम है। एंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मेल्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क एंड दिस डिस्टर्ब द सेक्स रेशियो। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे पार्ट्स हैं दुनिया के जहां से मेल जो है वो कहीं और चले जाते हैं वर्क के सर्च में, और ये सेक्स रेशियो को डिस्टर्ब करता है। एग्जांपल है बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीका, एंड इवन टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया, केरला इन इंडिया। अगर केरला की बात करें तो द नंबर ऑफ फीमेल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ मेल्स। केरला में नंबर ऑफ फीमेल्स ज्यादा है नंबर ऑफ मेल्स की वजह से। व्हाई? क्योंकि मैंने रीजन बताया ना कि मेल्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क। क्लियर? आफ्टर दैट one is literacy. What is literacy? So people are not equally educated in every part of the world. दुनिया के सारे देशों में या सभी पार्ट्स में सब लोग इक्वली एजुकेटेड नहीं हैं। और जो मेजर फैक्टर्स है विच अफेक्ट द लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट को अफेक्ट करने वाले जो मेजर फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है? दे आर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्बेनाइजेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टेटस ऑफ वुमेन, availability of educational facilities and government policies. These are the major factors on which literacy rate depends. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, the factors are economic development, urbanization, standard of living, status of women, availability of educational facilities and government policies. So the literacy rate is higher in urban areas than rural areas. अगर अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज को कंपेयर करें तो अर्बन एरियाज में, शहरों में लिटरेसी रेट ज्यादा है। और इवन अगर आप मेल्स और फीमेल्स को कंपेयर करें तो इट आल्सो मोर अमंग द मेल्स, मींस लिटरेसी रेट इज हायर इन मेल्स देन द फीमेल्स। फीमेल्स में कम है, मेल्स में ज्यादा है। तो इट वाज अबाउट लिटरेसी रेट। एंड द लास्ट टॉपिक इज population growth and development. This is the last topic of the chapter, population growth and development. So the rate of population growth affects the economic and social status of a country. ये जो population growth का rate है ना, ये किसी भी country के economic और social status को affect करता है। ऐसा देखा गया है, it has been observed that in developed countries the growth rate of population is low. जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कंट्रीज लाइक जापान, चाइना, है ना, वहां पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट है वो कम है, दैट इज लो। हाँ, वहां पे पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट तो कम है, लेकिन वहां पे जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड है दैट इज हाई। तो द स्टैंडर्ड ऑफ पॉपुलेशन इज हाई। आफ्टर दैट, सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड almost all topics of the chapter. So it is my humble request to all my students, please read all the topics carefully. Even I will today I will share question answers of the chapter. So please go through it and write it in your copy. So we will meet in next class. Till then, thank you and have a nice day.